Hey guys, welcome back to my channel. Today I will be uploading only and only video for international business, and today I have taken a very small break from auditing videos. So yeah, I got a request on one of my video in order to post syllabus of international business. Even when I searched Google for international business, I couldn't find it. Honestly, it was 2015, 16, 19, 20 syllabus that was actually provided to me by Google. So I really thought of making one video for international business. And so today here I am uploading video for international business about syllabus because what I believe कि अगर तुम्हारे पास एक फ्लो चार्ट है, एक टॉपिक की लिस्ट है कि यार आखिर करना क्या है, that would be the biggest support. ठीक है? Or in case you want, I can give you a better idea. Just, you know, skip my video, go to a friend, ask a friend to click the picture of the index of any book, international business that they are following and forwarded it to you. So that एक एक least हमारे पास list होती है तो हमें पता होता है कि हमें कितने क्या चीजें पढ़नी है, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं. So before you actually start studying international business, make sure that you actually know what all needs to be studied. Okay? So that you can divide your time accordingly. So इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? विल वी डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल? विल वी जस्ट लुक एट your syllabus? Will we just look at the chapter names, or will we look beyond that? So let's see what we will discuss. We will only restrict ourselves to the syllabus because in this particular quarter, I will be uploading only auditing videos, and I'll try my best in order to complete all the syllabus before 24th May. I believe that is your exam day of auditing. So yeah, before that, I'll try my best to actually upload all the videos of auditing. Now, I will not tell you this is the unit name, this is for this mark, and that. No, I will be telling what all needs to be covered in the single unit. Please write down, as I always request in my every syllabus video, that you should actually make a flowchart and stick it onto your study table, because you actually will feel very, very, very happy once you cut that chapter from the list. Trust me, that is a different level of satisfaction. And only thing in the IB that needs to be learned is like, dude, I know this topic, I can write it for 6 marks, I know causes, advantage, meaning and blah 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 from this particular topic, dot. So जब आप ऐसे रूम में भी वॉक कर रहे हो and you see the table, you know the chapters, you know the topics, and you're done. Divide pages as per instruction. Okay, this by this what I actually meant was that आपने flow chart को 4 में divide करो या 5 में divide करो and write down each and every topic, write down each and every unit, each and every chapter, so that again list बनेगी, रोज दिखेगी. ज्यादा चैप्टर्स बचेंगे, थोड़ी टेंशन रहेगी, यार पेपर पास आ रहा है, पागल तो नहीं हो गई है, तो थोड़ा कम टाइम वेस्ट कर ले. अगर कम टॉपिक दिखते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी. वाओ, इतना कवर कर लिया मैंने, आई एम सो इंटेलिजेंट. वैसे डीयू वालों को ये फीलिंग कम ही आती है, एज अ स्टूडेंट मुझे तो बहुत कम आती है. ठीक है, टेंशन वाली ज्यादा आती है. पेपर डेट अकॉर्डिंग टू द डेट शीट दैट आई हैव विद मी, it is 30th May. चेंज हो गई है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट इन केस इट हैज बीन अमेंडेड बाय डीयू. Now let's see the broader picture. There will be 5 units as I've already mentioned. 5 से ज़्यादा यूनिट किसी भी चैप्टर में नहीं होती है, वह किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होती है, मेजरली तो नहीं होती है. अब तुम्हारी बहुत ही बुरी किस्मत है तो 6 यूनिट हो जाएगी. अब यूनिट 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना. एक पेज लो, सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बनाओ. प्लीज स्क्रीनशॉट मत लेना. मैं बताती हूँ स्क्रीनशॉट लेने का क्या रीजन है. तुम हो पेपर वाले टाइम में, स्पेशली अप्रैल एंड मई में, तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे डेली की 50 इमेजेस आएगी.
भाई ये नोट्स दे दे, भाई ये सब्जेक्ट, भाई ये वाले ग्रुप से पेपर आ रहे हैं, ये मॉक आ रहा है, ये नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, तुम खोदोगे, स्क्रीनशॉट मत लेना, पेपर पे थोड़ा रहम करके लिख लो। ठीक है, ब्लू ब्लैक से भी नहीं तो ब्लू पेन से लिख लो। तो ये सारी चीजें लिख लो। तो बिफोर आई एक्चुअली बिगिन, आई नीड टू वार्न यू टू सर्टेन एरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चेंजेस हो सकता है जो मैं बता रही हूँ उनमें कुछ चेंजेस आ गए हो, कुछ चीजें हट गई हो, कुछ चीजें नई आ गई हो। ठीक है, कुछ भी नया है, कुछ भी हटा है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जिससे लोग देख पाए। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम अगर आपको पता तो आप कर देते। नहीं, मुझे नहीं पता। वाई? बिकॉज आज हम जी रहे 2022 में, एंड मैं पास आउट हुई 2000, सॉरी, हम जी रहे 2023 में, एंड मैं पास आउट हुई 2022 में। सो वट एवर बुक्स आई हैव अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस 2022। ठीक है, अब मैम तुम मेरे को गालियां भी दोगे, मैम पागल हो गए हो, 23 में 22 का सिलेबस बता रहे हो। मैं बताती हूँ मैं क्यों बता रही हूँ। क्योंकि अगर तुम YouTube पे सर्च करो, ठीक है, तो मुझे तो नहीं मिला लेटेस्ट सिलेबस, एंड ऑल द सिलेबस वाज फॉर द 2020 और 2015-16। सो इट्स रादर आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद 2022 सिलेबस अगर तुम्हें लेटेस्ट नहीं पता, इंस्टेड ऑफ गोइंग फार बैक इन टाइम। ठीक है, दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। इन केस कुछ भी चेंजेस है, कुछ भी तुम्हारी टीचर ने बोला है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वील जस्ट क्विकली डू इट। देखो, सिलेबस पे सबसे बेस्ट बात होती है मुझे कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ तुम्हें फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके देने हैं कि भैया तुम बना लो, और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए डंडा लेके बैठी हूँ कि तुमने बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो ये है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 हर सब्जेक्ट की इजीएस्ट यूनिट होती है, एंड इसे आउट ऑफ ऑल द यूनिट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैं बताती हूँ लीस्ट क्यों। लीस्ट इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आई एग्री, बट ये ऐसी यूनिट्स होती है कि अगर तुमने एक बार भी पढ़ ली ना, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू राइट डाउन आंसर्स ऑफ एटलीस्ट 10 मार्क्स। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें ग्लोबलाइजेशन, तो मतलब हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब क्या होता है, हम दूसरी मार्केट्स में, हम दूसरे कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए कैसे घुसते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो ये बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, अगर आज पे कोई भी अपना स्टार्टअप बनाती है और मुझे यूएस जाके बिजनेस करना है, तो मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगे, क्या क्या वहां के लोग मुझे compete करेंगे, वहां के क्या होगा। तो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। पेस्टल पेस्टल मॉडल जो मैंने आई गेस क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज से पढ़ा था, तो दैट इज हाउ यू नीड टू रिलेट your current studies with the prior studies, because unit 1 is the most basic unit and you can actually do that. Okay, अगर तुम कोई भी other course pursue कर रहे हो, AGCA, CPA, CA, तो this will be the most relatable in terms of your other professional course as well as your real life. Fine, अब मैं इतना भाषण दे रही थी तो इतने में तुमने ये सारे टॉपिक्स लिख लेने चाहिए। नहीं लिखा, पॉज करो। ओके, द बेस्ट वे टू मेक अ फ्लो चार्ट, आई क्विकली सजेस्ट यू। ये तुम्हारी वाइट शीट है, ठीक है। आई डोंट नो यार मैं कैसे लाऊं, हाँ ओके, वेरी गुड, मुझे आता है, कुछ तो आता है। ओके, यहाँ पे लिखो इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पे लिखो पेपर की डेट जिससे ये डेली दिखेगी तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा। यहाँ पे लिखो यूनिट SA 5। ठीक है, इसके नीचे लिखो 1 2 3 4। मैं DU के बच्चों को सिखा रही हूँ, मुझे ना तुम गालियां मत देना। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा, एंड इसके नीचे लिखो ऐसे। फाइन, अब देखो तुम्हारा क्या होगा, तुम ऐसे मैगी खाते हुए डेली किचन में से चलते हुए आ रहे हो, ओ वाओ ये तो मुझे आता है, डन। तो इसे ना कोई ऐसे हाईलाइट से मार्क कर लो, हाईलाइटर से, या इसे ऐसे मार्क कर लो, बट ऐसे मार्क करना कि तुम्हें नीचे का टॉपिक दिखे। ठीक है, ये नहीं कि नीचे का टॉपिक छुपा के बैठ गए हो। ओके, सो इनफ ऑफ ज्ञान। Now let's talk about unit 2. These are the unit 2. Okay. सबको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन,
ये ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीओपी अकाउंट क्लास 12 की इको अगर पढ़ के आए हो, आई बिलीव अगर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हो तो सबके 95 96 आए होंगे इको में, तो बीओपी का तो मतलब पता ही होगा, ठीक है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, टू थ्योरीज नाम से ही समझ में आ रहे हैं, ठीक है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, मेरे देश में कोई आएगा या तुम किसी के देश में जाओगे तो हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे, हम आरती लेके स्वागत नहीं करेंगे तुम्हारा, ठीक है। और मे बी कुछ कंट्रीज करते हुए है, ठीक है, जैसे मोदी जी जापानीज के फैन हो गए, जापानीज टेक्नोलॉजी के, तो ऑब्वियसली वो माला लेके करते भी है, बट देर आर फ्यू कंट्रीज जिससे मोदी जी थोड़ा नहीं करते होंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ मेजर्स और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय ईच कंट्रीज? नाउ दिस इज the most time consuming unit. Please, unit 1 or 2 पे सारा time मत खपा लेना. Do not take more than 10 days to cover both the units. Spend majority of time on unit 4. This is most important, this is most logical, and this is most interesting unit that you will see in the whole syllabus. This requires your full dedication, this requires your conceptual clearance. How will you actually respond to different situation? Are you able to answer the questions well? Are you able to see, if I'll give you a twisted question, will you be able to answer? हो सकता है पेपर में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर बिकॉज ये आगे जाके काम आता है, ये बहुत लॉजिकल है, एंड यस, trust me, recently I have started my investing journey as well. So the basic funda, the foreign risk management and foreign exchange, this becomes very important. In case you are not able to understand these basic things, you will actually struggle in the life. You may pass paper today, but you will struggle in the real life. Okay. So make sure you know these things. Okay. Now this is the most logical. इसमें मैं बताती हूँ सबसे ज्यादा हमें क्या करना है। बहुत ज्यादा लगेगा कि यार मैम इतना सारा, मैम पागल हो गए हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल। तुम अपने आप को यहाँ पे समझोगे एक जीता जागता बिजनेसमैन, ठीक है, जो आज बहुत बड़ा स्टार्टअप बना के बैठा है। बताओ कौन सा लूं? चलो, आई टेक जीरो था। आई होप जीरो था सबको पता है क्या होता है, क्या है एग्जैक्टली और चैट जीपीटी और कैनवा, ठीक है। चलो एक प्रोडक्ट लेते हैं, दीज ऑल आर द सर्विसेज दैट आई हैव एक्चुअली टेकन। प्रोडक्ट लेते हैं, क्या ले प्रोडक्ट? बोट, ठीक है, बोट के हेडफोन्स। अब उसे जाके यूएस में प्रोडक्शन करनी है और एल से चाइना में प्रोडक्शन करनी है, जो वो एक्चुअल में करता है आई गेस। तो कहाँ प्लांट लगाऊं, क्या मैं खरीदूं या ना खरीदूं, कैसे आउटसोर्स होगा, क्या लॉजिस्टिक्स है, एक बिजनेस को बाहर चलाने के क्या फीचर्स है, ये पूरा यूनिट उसके बारे में। किसको बेचूं, बाहर किसको बेचूं, क्या मेरा प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बाहर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है, क्या बाहर ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं लगेगा, अगर मैं यूएस में 10,000 का बेचूं तो इंडिया में क्या 10,000 में लोग एक्चुअली खरीदेंगे भी नहीं खरीदेंगे, कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। So everything is very logical here, but everything is based on one concept कि तुम अपना धंधा चला रहे हो, ठीक है। So yeah, this will be very easy. This will be very light-hearted unit. This will be very story-based unit. Okay. Now the unit 5 is the final unit. No comments about unit 5. Unit 5 is the last thing that you will be covering in your syllabus, but make sure that you actually cover first 4 units very well, and then लास्ट के 10 दिन में ये तो तुम इसे हब्बड़ तब्बड़ में करोगे, मुझे पता है सबका यही हाल होता है। लास्ट यूनिट को तो हम सिर्फ देखते हुए जाते हैं, तो ठीक है, थोड़ा हम देखते हुए ही जाएंगे, इसलिए ही मैं तुम्हें फ्लो चार्ट बना रही हूँ कि तुम्हें पता हो इन टर्म्स का मतलब क्या है। एकदम जाके ब्लैंक मत बैठना पेपर में, दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो, दैट यू डोंट सिट ब्लैंक। ओके, so that's it
for this particular video. I hope you really liked it. I hope you will suggest changes. I hope you will write down in the comment section as to whether it was helpful. Did you make a flowchart? If yes, you made it, I want to hear yes, yes, ma'am, yes, ma'am, yes, ma'am in the comment section. And trust me, even if one student makes the flowchart after watching this video, my purpose of making this video is fulfilled. Okay. So I hope you are that one child and have a great day. All the best for your paper and sorry in advance for not making videos for international business. I will cover next year जब तक तुम लोग pass out हो जाओगे. So bye bye. Have a great day. All the best.